Hello students, I am Monica from the Department of Fashion Technology. Today's subject is textile in traditional Indian textiles, and the topic is patola, which is a resist type of dyeing. In this presentation we have to learn about the procedure and origin, history, and what is the method or technique which we used to print or to dye in patola. First slide shows introduction. Patola are hand woven silk sari that are created in Patan and Gujarat. It is a double इकत साड़ी. इकत मीन्स जिसमें हम टाई एंड डाई का टेक्निक यूज़ करते हैं डबल मेथड से. It has a heritage of Gujarat. Patola silk is often termed as a queen of all silks. The name patola is derived from the Sanskrit word patakula. The craft of weaving them rests exclusively with the Salvi family in Patan, who manufacture patola for royalty and aristocracy. जिसकी हिस्ट्री है उसमें जो ये पटोला साड़ी किसने शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत की थी साल्वी फैमिली ने पतन में. पतन इज़ द नेम ऑफ स्टेट विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात. ये जो इमेजेस आप देख रहे हो ये पटोला डाइंग की हैं कि आफ्टर डाइंग उसकी जो इमेज आती है, जो उसकी लुक आती है. हिस्ट्री एंड ओरिजिन. द पटोला फैब्रिक इज सेड टू बी ए गुजरात ओरिजिन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पतन पटोला. दीज साड़ी हैव अ फेमस स्टोरी एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग द 12th century. It is believed that the king of Maharashtra sent the used clothes to the king of Gujarat. Then he attacked the palace and brought back around 700 patola weaving families to Gujarat. गुजरात 700 फैमिलीज़ को, साल्वी फैमिलीज़ को जो महाराष्ट्र का किंग था वो वहाँ पे वापस लेके आया ताकि उनके हेरिटेज को गुजरात में ही बढ़ावा मिले. इसके लिए उन्होंने अटैक किया था पैलेस पे. जो गुजरात में जो उनका किंग्स का जो साम्राज्य था उसके साथ उन्होंने फ़ाइट किया उन 700 वीवर्स को अपने वापस लेके आने के लिए. With the intention to acquire the patronage of king, patola weavers started weaving. Finally, patola made the kings to wear royally in every pujas. Today, they become apt slogan of India. पटोला साड़ी है सिंबल ऑफ स्टेटस. इसे जो पटोला की साड़ी है इसे लोग अपना स्टेटस सिंबल मान के चलते हैं. सो इसे काफ़ी मतलब हैवी जो ओकेजन्स होते हैं, मैरिजेस, फंक्शंस पे आज के टाइम में भी इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है. ट्रेडिशनली क्रिएटेड बाय द हिंदू साल्वी कास्ट एंड ट्रेडेड टू साउथ ईस्ट बाय एशिया बाय द मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी. This costly, exclusive and high-status oriented patola sari were worn by the Vohras, Jains and Hindus for weddings and other propitious occasions. The sari became symbol of status, part of wedding, brocade dresses, and are regarded as best pure silk bridal wear for wedding and other propitious occasions. Now, what is the procedure of dye in patola sari? Patola weaving is one of the difficult form of weaving in the world which follow the double इकत स्टाइल फॉर वाप एंड वेफ्ट. इसमें वाप और वेफ्ट जो लॉन्ग ग्रेन और ऑफ ग्रेन में थ्रेड्स होते हैं दोनों को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उनको टाई किया जाता है. द पटोला आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1000 of years by the same process as it was before till today. जो इसकी टेक्निक थी, जो इसका मेथड था, जो आज से हज़ारों साल पहले था, वही मेथड आज भी यूज़ किया जाता है. उसमें कोई चेंज नहीं आया. कोई भी ऐसे टेक्नीशियन या कोई भी ऐसी इनोवेशन नहीं हुई जिसमें जो पटोला का ट्रेडिशनल टेक्निक था, मेथड था, उसको चेंज किया जा सके. टू क्रिएट अ पटोला साड़ी both the warp and weft thread are wrapped to resist the dye according to the desired pattern of the final woven fabric. This tying is repeated for each color that is to be included in the finished cloth. The technique of dyeing both the warp and weft before weaving is called double ikat. The bundle of thread are strategically knotted before dyeing. Patola sarees from Patan are renowned for their colorful diversity and geometrical style.
ये आप इमेजेस देख रहे हैं जिसमें कि इसका टेक्निक, इसे टाई करने का प्रोसेस बताया जा रहा है। जो फर्स्ट इमेज है, थ्रेड इंक्ड इन ब्लैक कोल सॉल्यूशन, जिसमें कि थ्रेड को काले सॉल्यूशन में, कोयले के काले सॉल्यूशन में डाल के जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वहाँ वहाँ पे उसे टाई किया जा रहा है। देखिए आप, ये सेकेंड इमेज है, द इंक्ड थ्रेड इज़ यूज टू मार्क द डिज़ाइन ऑन द यान के ऊपर डिज़ाइन की मार्किंग करने के लिए ब्लैक थ्रेड को यूज़ किया जाता है। द मार्किंग आर टाइड विथ कॉटन थ्रेड सोक्ड इन वाटर, धागे को काला करके सुखाने के बाद अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ये देखिए जो वीवर है उसे टाई कर रहा है मैनुअली। व्हेन डाइड द एक्सपोज्ड एंड अनटाइड एरिया एब्जॉर्ब द वाटर। The colored, the tied area, the thread are removed and area which are colored and dyed again in different color। जितने कलर्स हमें इसमें चाहिए उतनी बार हमें इसे लूम पे डाल के इसे टाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वार्प एंड अकॉर्डिंग टू वेफ्ट, दोनों तरीक़ों से। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कलर्स टू बी डाइड। ये देखिए, ये फाइनल प्रोसीजर के बाद जो थ्रेड हमारा तैयार होता है डाई करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ डबल इकत में। द थ्रेड विच आर मल्टी कलर्ड लुक लाइक दिस आफ्टर फाइनल डाइंग। यार्न डिजायर्ड विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न, मोस्टली इसमें जो ज़्यादा तैयार किए जाते हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न तैयार किए जाते हैं। प्लेन कलर डाइड थ्रेड्स आर एडेड इन वार्प वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। ये देखिए जो ये वीवर है, द थ्रेड आर अनटेंगल्ड एंड अरेंज्ड प्रॉपरली। थ्रेड जो है उनमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है, कोई भी उनमें जो डिस्टेंस है मतलब वन कॉर्नर से अनदर कॉर्नर तक दैट विल बी सेम। बैम्बू शटल इज़ यूज टू इंटरलॉक द थ्रेड वाइल वीविंग। वीव करने के टाइम जैसे कि चरखा यूज़ किया जाता है हैंडलूम के लिए, वैसे ही इसके लिए भी जो वीविंग के लिए जो उन्होंने शटल तैयार किया है वो विद द हेल्प ऑफ बैम्बूज तैयार किया है। फाइनल आउटपुट, ये जो थ्रेड तैयार किए गए थे डाई करके, ये उनसे जो फाइनल साड़ी तैयार हुई है इकत में, पटोला में। सो अनदर इज़ मटीरियल यूज्ड इन मेकिंग। जो मटीरियल यूज़ होता है, फ्रॉम मोर देन 100 ऑफ ईयर्स द मटीरियल यूज्ड इन पटोला साड़ी हैव ऑल्सो बिन प्योर सिल्क विद वेजिटेबल और नेचुरल कलर। These dyes is that they create a proper harmony and coordination. Even when contrast color are used, they are pleasing to the eyes and are eco-friendly and hygienic. Some of natural dyes used haldi, mother roots, magista, ratanjot, indigo, mehndi, katha, kesudo, pomegranate skin, etc. to name the few. Natural dyes vegetables के साथ साथ इसमें लाइक हल्दी, हीना, मजीठा, कुछ स्पाइसेस भी हैं जिनको ऐड किया जाता है नेचुरल कलर लेके आने के लिए। ये वो सारे नेचुरल जो मसाले हैं या फिर जो नेचुरल मटेरियल है जिससे कि इकत बनाने के लिए, पटोला को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन एंड पैटर्न, इसमें जो डिज़ाइन हम लेते हैं वो मोस्टली पटोला और द डबल इकत साड़ी आर यूजली रिनाउड फॉर देयर geometrical and colorful ranges with motifs of flowers, jewels, flora, fauna, parrot, elephant, dancing figures with plain dark and color border on pallu and body of the sari. In Jain and Hindu community, double ikat sari with entire design of parrot, flower, elephant and dancing figures are generally used. In Muslim community, saris with geometrical design and flower patterns are typical, being worn mostly for weddings and other special occasions. Maharashtrian Brahmins wear saris woven with plain dark colored border and body and a bird design called नारी कुंज। ये देखिए, ये जो फाइनल पटोला के डिज़ाइंस तैयार हुए हैं ज्योमेट्रिकली और एनिमल प्रिंट्स में, फ्लोरल प्रिंट्स में। सो इसके कुछ की फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ दैम इज़ इक्वल डिज़ाइन एंड वेयरेबल ऑन बोथ साइड्स। एक जैसा डिज़ाइन होता है बिल्कुल सिस्टमेटिकली और दोनों साइड से इस साड़ी को पहना जा सकता है। इवन वेवर्स कांट आइडेंटिफाई विच इज़ द फ्रंट एंड बैक वंस द वीविंग इज़ ओवर। Only 3 families in Patan make them today out of original 700 families. 3 people take 4 to 6 months to weave one sari which is 5.5 meter long and 48 inches wide. No computers or power loom are used. The measurement tapes are the same which were invented 1000 years ago. Made only in silk. As it test 80 and 100 years, they consider making it in cotton as waste of their time as it will tear in 40 to 50 years. So जो हमने पटोला डाइंग, रेजिस्ट डाइंग के बारे में पढ़ा वो बिल्कुल हाईली ट्रेडिशनल टेक्निकल मैनुअल प्रोसेस था
जिसमें कि टाई एंड डाई का डबल इक्कत प्रोसीजर यूज़ किया जाता था। जो ट्रेडिशन आज से हज़ारों साल पहले था, सेम उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है आज भी। विद द कोई पावर लूम्स, कोई हाईली टेक्निकल मशीन्स इसमें यूज़ नहीं होती, टोटली मैनुअल प्रोसीजर, जिसमें कि 700 फैमिलीज़ जो इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री में थी वो, जबकि अब सिर्फ 3 या 4 फैमिलीज़ रह गई हैं पत्तन में ही, गुजरात में ही। सो ये थी इसकी हिस्ट्री एंड प्रोसीजर। सो थैंक यू वेरी मच।